میں خوش قسمت ہوں، آپ لوگ بھی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں مشاعرے کے صدارت کے لیے جناب امجد صاحب جیسے شاعروں کے استاد شاعر میسر ہے، وگرنہ تو مشاعرے کی صدارت کا وہ ایک واقعہ ہے کہ مشاعرے کی صدارت کے لیے صدر مناسب نہیں مل رہا تھا، تو ایک جنرل صاحب کو مشاعرے کی صدارت اختیار کر دی گئی۔ بھائی جنرل صاحب مشاعرے کی صدارت میں کی، جنرل صاحب نے زندگی مجھ سے پہلے نہ کبھی سنا، نہ مشاعرہ سنا، نہ کبھی دیکھا، لیکن وہ صدارت مل گئی۔ تو جب وہ مشاعرے میں بیٹھ گئے، مشاعرہ شروع ہو گیا، شاعروں نے شعر پڑھنے شروع کیے، لوگوں نے داد دینے شروع کر دی، داد دینے واہ واہ بھی کیا اور مقرر بھی کہا۔ تو جنرل صاحب کو سمجھے کہ یہ مقرر کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اسٹیج سیکٹر سے پوچھا کہ یہ مقرر کیا کہہ رہے ہیں، اس نے مقرر کرتے میں دوبارہ پڑھے۔ تو جنرل صاحب بہت غصہ آیا، انہوں نے مائک پکڑا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو شاعر ہے یہ آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہے، یہ شاعر آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہے، پہلے آپ ایک بار غور سے نہیں سنتے اور پھر تنگ کرتے کہ دوبارہ کہتے ہیں بار سنایا جائے، جس نے سننا ہے غور سے سننا، ایک بار سنیں۔ تو ایسا ہی آپ کو مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ دوبارہ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ ایک تو کہتا کہ کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری راؤنڈ جاتی ہیں۔ کبھی بیگم بلاتی تھی یہ دل بنی اچھلتا تھا، وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپے ٹانگ جاتی ہے۔ کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری راؤنڈ جاتی ہیں۔ کبھی بیگم بلاتی تھی یہ دل بنی اچھلتا تھا، وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپے ٹانگ جاتی ہیں۔ اور ایک اور قطع کا عنوان ہے بلہائے حکمت، کہ حکمت کی بات دیکھیں کیا ہے کہ 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی؟ سوال تو بنتا ہے۔ 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی؟ پونا گھنٹہ سر جھکا پھر بابا جی یہ بولتے، سمپل بات ہے عورت ذات کی بیوی جو نہیں ہوتی۔ اور ایک اور بتا کہ قدر مشترک کامن سملیرٹیز کہتے ہیں، ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں مشترک، کہ عشق محبت اپنی ٹائپ کی بکری ایک تسبیح ہے، عشق محبت اپنی ٹائپ کی بکری ایک تسبیح ہے، اس میں بندہ جیتا بھی ہے اور مرتا بھی رہتا ہے، رن مریدی اور سرکاری نوکری ایکو جیسی ہے، بندہ روتا بھی رہتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی نظم کا عنوان ہے کہ بات سے بات نکل آتی ہے، بات سے بات نکل آتی ہے، 3 مصروں کی نظم ہے کہ ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے، وہ دی گاڑی کھوٹنا ٹکرا گئی، کسی بابا کی جا رہی ہے۔ ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے، دوسری بولی کھوتے سے ایک گل یاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے، خیری سزا اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسی ہے۔ ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے، دوسری بولی کھوتے سے ایک گل یاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے، خیری سزا اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسی ہے۔ اور بیوی نے پوچھا یہ اپنے شوہر سے کس موسم میں اور کب نیچے لگتی ہے؟ بیوی نے پوچھا یہ اپنے شوہر سے کس موسم میں اور کب نیچے لگتی ہیں؟ شوہر بولا موسم کی تو رب جانے، جب بھی سچ بولے تب نیچے لگتی ہیں۔ اور بیٹھے بیٹھے اچن چیتے
नवी कसौटी पढ़ सकता है। बैठे बैठे अचल चेते नवी कसौटी पढ़ सकती है। काले खून की खैर है लेकिन शहद की मक्खी लड़ सकती है। बीवी ऐसा गोरख धंधा है जो पल्ले पढ़ नहीं सकता। कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसी घर पे लड़ सकती है। बीवी ऐसा गोरख धंधा है जो पल्ले पढ़ नहीं सकता। कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसी घर पे लड़ सकती है। और जोजा माजदा वो जासूस है जो 2 मिनट के अंदर अंदर दिल की 7वीं तय के अंदर बैठी घर को काट सकती है। और हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर। हर कोने में वो पीछे बना ऐसे हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर। अल्लाह जाने ये अफवाह कब और किसने फैला। हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर। अल्लाह जाने ये अफवाह कब और किसने फैला दी। किस कोने में जाकर बंदा अच्छी बीवी ढूंढे। रब सोने ने फानी दुनिया बिल्कुल गोल बना दी। और 2-3 शेर की गर्दन है और कोटा कोटा ही होता है। बात चीजें वक्त के साथ फिर दोबारा रेलिवेंट हो जाती है। गर्दन है और कोटा कोटा ही होता है। खरा हमेशा खरा है, कोटा कोटा ही होता है। नए निजाम की बढ़ते छूटे उम्र गुजर गई सारी। बड़ा हर थां बड़ा छोटा छोटा ही होता है। और लुच्चे को समझाया प्यार से सिफर नतीजा निकला। हमने ये आजमाया सोटा सूटा ही होता है। लुच्चे को समझाया प्यार से सिफर नतीजा निकला। हमने ये आजमाया सोटा सूटा ही होता है। पहले उधरों फिर इधरों अब फिर खड़ा है उधरों। पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। तो ये लोटा जो पाकिस्तानी सियासत का बड़ा माशाल्लाह पुराना करैक्टर है। और हर इलेक्शन पे हम ये समझते हैं कि शायद इस बार इससे निजात मिल जाएगी। लेकिन वो पुराने पित्तल के लोटे होते थे जैसे कली होकर दोबारा नए हो जाते थे जो हर बार कली होकर दोबारा आ जाता है। तो एक छोटी सी नज़म कि लोटा क्या है, लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद की पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था। लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद की पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था। अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद की पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था। अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मुअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है। मखलूक़ात में अशरफ होकर छोटा कैसे बनता है। और उसके दिल के अंदर साड़ी याद का रोड़ा लड़का होगा। उसके दिल के अंदर साड़ी याद का रोड़ा लड़का होगा। माहिए बेआब की मानंद तड़पा होगा, भड़का होगा। शोर शराबा खड़का दड़का सुनकर उसने गैस लगाया। या बादल दर्जा है ऊपर या बेगम का कड़का होगा। सीने की हांडी के अंदर बकरी टाइप की शूशू होगी। साढ़े दिल की दाल के ऊपर उसके हुस्न का तड़का होगा। और कुछ होकर दरवाज़ा खोला, अग्यो मीटर रीडर निकला। वो समझी थी शायद आज भी सामने वाला लड़का होगा। और एक तो फरमाइश की थी, पुराना एक 3 शेर है कि उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अबा था। उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अबा था।
सब हरियाण थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से दबा था। और समझ नहीं आती बत्ती तारे वो किससे बख्शाए। उसकी माँ तो फीडर थी और उसके दूध का डब्बा था। उस जगह पर काफी लोग की मन्नतें मांगने पहुंचे। पिछले बड़े जहां पर हमने गोया ऊपर दबा था। और इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया, मीह बरसा था, आधा घंटा कोठा दोनों चोया। पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, वो ब्यूटी पार्लर का ये सारा कमाल होता है। उसी तरह की खातून की सुबह उसने मुंह धोया तो उसके हस्बैंड ने पूछा कि मेकअप कहाँ से करवाया था। उसने बताया फलान ब्यूटी पार्लर से करवाया था। तो उसने उसे कोरियर में एक गिफ्ट दिया। तो 2 दिन बाद उसको फ़ोन आया तो खातून बड़ी गुस्से में थी, कह रही कि मुझे गिफ्ट आपने भेजा था, कोरियर के शक्ल मैंने भेजा था। कह रही मैंने इसको खोला और इसके अंदर आईफोन, जो लेटेस्ट आईफोन 13 है, उसका डब्बा निकला। मैंने इसको शौक से खोला, अंदर से नोकिया 1100 निकला है। उसने कहा खातून इसमें इतने नाराज होने की क्या बात है, 2 दिन पहले आपने मेरे साथ यही किया है। पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर भी वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, शादी वाले दिन को लड़की आखिरी बार की रोई। बाद में लड़का को हयाती मांगे मारते और एक छोटी नज़म है, नज़म का अनुमान है दुआओं का उलट फेर। अब ये देखिए कि दुआएं वक्त के साथ कैसे तब्दील हो जाती हैं, कैसे बिल्कुल एग्जैक्टली उलट हो जाती है दुआएं। तो दुआओं की तरतीब आपने याद रखनी है कि कंवारा घर से चलता है, कंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज़ व नासिर हो सकता है। राती वापस घर पहुंचे तो रब का शुक्र अदा करता है। दूसरे पास से शौहर घर से चलता है तो रब का शुक्र अदा करता है। राती वापस घर पहुंचे तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज़ व नासिर हो सकता है। और आखिर में 2 कतार, एक जो दोनों जनाब इकबाल से, जनाब अल्लामा इकबाल की इशार से उस्ताद लिए हैं। एक तो हमारे जो पाकिस्तान में अमूमन सूरत का जैसा पहले से है तो उस पर है कि एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। कुर्ता पहने हुए महमूद था, जैकेट में एजाज। एक ही साथ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। कुर्ता पहने हुए महमूद था, जैकेट पे अयाज। दूर तक सबने सुनी जोर से एक ठाक की आवाज, फिर वहां बंदा रहा और रब बंदा नमाज। और आखिर में एक कथा, वो भी जनाब इकबाल की नज़म है, टहनी पे किसी शजर की तरह गुलदार बैठा। तो ये जुमलों का मुकालमा है 4 सत्रों में। लेकिन दायरा जनाब इकबाल के ज़माने का जुमल बुलबुल जनाब इकबाल की सोबत में रहते थे और फलसफियाना गुफ्तगू करते थे। आजकल के जुमल बुलबुल हमारे और आपकी सोबत में रहते हैं। तो उन्होंने के मसाइल देखकर गुफ्तगू का अंदाज देखे कि जुमल बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं। जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं, घर जाकर तू सौं मार ले के रात की इतनी तती कोई नहीं। बुलबुल बोला घटिया कीड़े तुझको जूते सूझ रही है, तेरी दोम पर जूती ऐसा है, साढ़े घर में बत्ती कोई।